Good morning. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So, sometime one news comes and panic sets in. Now, one of our subscribers asked, Sir, government has abolished military engineering service post. What is the impact on banking post? Now, you can see this psyche running among us, the unemployed people. They are now worried about every negative news. And even they are not able to distinguish between the government job and banking and insurance job. In my various videos, I have explained in detail. These are different jobs. These are different requirements. Central government, state government jobs are run on the basis of revenue collected by these governments in form of taxes and other sources from public. If there is a strain on collection of tax, definitely these governments are not in position to either employ more people or to pay salaries to their employees or other allowances to their employees. But if we look at some company, or if we look at bank, or we look at insurance, from where they pay salary? It is not paid out of budget. No central government or state government pays any money to bank or insurance company to pay salary to its employees. This employee salary is paid out of its own income. So in bank, if they have to recruit the people, the salary will be paid out of interest earnings and other earnings. If recruitment to happen in LIC, the salaries are to be paid out of premium collections. So in these organizations, the recruitment will merely depend on retirement figures. These days, banking and insurance is not expanding the overall staff. But yes, if say 1,000 people are retiring, they are replacing it by either 800 new employees or 600 new employees depending upon the policy of bank. In some banks, 80% replacement policy is there. In some banks, 60% replacement policy is there. That means in each and every organization in banking, the number of employees as on roll are on decline on account of retirement every month. But these are refilled by new recruitments to the tune of 60% or 80% of retirement. So you need not worry. My only advice to each one of you is you cannot help or you cannot decide how many vacancies will be there. Whatever number of vacancies comes, you have to compete. And since you have to compete, my advice to you is concentrate on study. Use the mock test suggested by me. Excellent mock test I have suggested. Then a set of 7 videos I have dedicated to you. What is the right way of preparation? The link of mock test as well as link of these videos is available in description. Kindly go through this and start preparation. Mock test, you can take the annual plan so that you have access to various exams. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. अब एक खबर आ गई कि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में कुछ पोस्टें भारत सरकार ने अबॉलिश कर दी. अब हम लोग अनएम्प्लॉयड हैं. कोई भी खबर आती है तो चिंता हो जाना स्वाभाविक है. तो ऐसी ही चिंता को एक हमारे सब्सक्राइबर ने प्रकट किया कि सर इससे बैंक की रिक्रूटमेंट पे क्या असर होगा. देखो, सबसे पहली बात आपको बड़ा बारीकी से समझनी है कि जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, वो तनख्वाह कहाँ से देते हैं अपने एम्प्लॉइज को. वो तनख्वाह देते हैं टैक्स से या जो और सोर्सेज से उनके पास पैसा आ रहा है.
तो यदि टैक्स कलेक्शन में दबाव होगा या अदर सोर्सेज से जो पैसा दबाव आएगा तो नेचुरल है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जो जॉब्स हैं उस पर भी असर पड़ेगा और जो वो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज को तनख्वाह दे रहे हैं या अलाउंसेस दे रहे हैं उस पर भी असर पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। और आज की डेट में टैक्स कलेक्शन कम है, ये सबको पता है। जहां तक बैंकिंग और इंश्योरेंस का सवाल है या और कंपनीज का सवाल है, वो जो तनख्वाह देते हैं उसमें कोई सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा नहीं देती उनको, कोई स्टेट गवर्नमेंट पैसा नहीं देती। ये ऑर्गेनाइजेशन तनख्वाह देते हैं अपने खुद के कमाए हुए रेवेन्यू से। बैंकों में रेवेन्यू कहाँ से आता है? ब्याज जो लगता है लोन्स के ऊपर, या जो इन्वेस्टमेंट की हुई है वहां से जो ब्याज आता है, या जो कमीशंस आती हैं, या जो अदर इनकम है, कोई उनके पास सिक्योरिटी है वो बेच दी, प्रॉफिट आ गया उसमें, वहां से पे करते हैं। ऐसे लाइफ इंश्योरेंस कहाँ से पे करती है? जो उनके पास प्रीमियम आया है वो उनकी आमदनी है, उसमें से वो स्टाफ का खर्चा निकालते हैं। तो ये खर्चे जो निकाल रहे हैं उनकी आमदनी अभी भी इंटैक्ट है, अभी भी आमदनी आ रही है। बैंकों के अंदर कोई इंटरेस्ट इनकम में रिडक्शन नहीं आई है, इंटरेस्ट इनकम अभी भी चल रही है कोरोना वायरस के दौरान भी। इसीलिए बैंक सैलरी भी दे पा रहे हैं और कई बैंकों में तो इन दिनों में एडिशनल सैलरी भी दी जा रही है। तो जहां तक बैंकिंग और इंश्योरेंस का सवाल है, इसमें रिक्रूटमेंट होगा। अब रिक्रूटमेंट का यहाँ पर क्या तरीका है? यहाँ पर तरीका है कि जो रिटायरमेंट हो रही है उसके एवज में 80 या 60% रिप्लेसमेंट बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज करती है। कहने का मतलब यह है कि यदि 1000 आदमी रिटायर हो रहे हैं तो कोई बैंक 800 लोग वापस लेगा, कोई 600 लेगा नई भर्ती से। तो नई भर्ती तो होगी क्योंकि हर महीने रिटायरमेंट हो रही है। आपने देखा होगा, हमने एक वीडियो डाला कि अप्रैल के महीने में 2300 लोग बैंकिंग पब्लिक सेक्टर बैंक से रिटायर हो गए। ठीक है, तो हर महीने ये रिटायर होंगे और संभावना लगभग 35,000 के करीब लोग रिटायर होंगे इस साल। तो अगर 35,000 रिटायर होंगे तो उसका आप 60% 80% निकाल लीजिए। इतने लोगों की जरूरत है ही है, तो इसके लिए कोई एडिशनल साधन नहीं चाहिए। एक आदमी की सैलरी बंद हो गई, दूसरे की शुरू हो गई। 1 लाख रुपया कमाने वाला व्यक्ति रिटायर हो गया और 30,000 कमाने वाला उन्होंने भर्ती कर लिया, तब भी 70,000 रुपये बच गए। काम तो वो उतना ही कर रहा है। तो इसलिए ये चिंता मत लगाओ कि बैंकिंग में रिक्रूटमेंट होगी कि नहीं होगी, इंश्योरेंस में होगी कि नहीं होगी। रोज खबरें आएंगी। आपका काम है जो आपने करना है वो करिए। कितनी वैकेंसी आएंगी, कब आएंगी, ये आपके हाथ में है ही नहीं है। आपके हाथ में क्या? अपनी पढ़ाई, उस पर ध्यान दीजिए। आपको एक अच्छा मॉक टेस्ट मैंने सजेस्ट किया हुआ है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और आपको कमेंट कॉलम में दे दिया है। फिर मैंने आपको 7 वीडियोस का एक सेट बना दिया है कि सही तरीका क्या है तैयारी करने का। उन वीडियोस को देख लीजिए, उसके हिसाब से तैयारी शुरू कर दीजिए। उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन कॉलम में दे दिया। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।